Hello students, today we learn pointer with arrays programming. Here one program example using pointer with arrays. Write a C program to find, the question is write a C program to find the product of two matrices using pointer. All of you know how the logic will be placed in multiplication of two matrix. I have already told about this. Using array we solved, actually using two-dimensional array we solved multiplication of two matrix. Here we solved multiplication of two matrix using pointer. Okay, let's see. Here this is the first matrix, matrix 1, and this is the second matrix, this is matrix 2. Here row subscription I for rows and j for columns. Star a means star a is a star means star a means is a pointed variable matrix. Okay, and star b, this is the second matrix with pointer. These are the sum values 3 2 1 minus 2 0 4 3 2 1 actually. And we have to multiply these two matrix, and we want to store the values in matrix 3, third matrix. Here suppose the third matrix name is C, and the formula is what? Formula is star a plus I plus j. This is the formula for finding the base address. Base address of the matrix A plus I means for rows and j means j is used for columns value. Okay, star of a plus I plus j, it find out the address of this location, and we need the values for multiplication. So how we contain the values, how we access the values? Using pointer variable, using star. So this is the logic. Star of, within bracket, star a plus I plus j, to find out the value of the matrix for each and every cell. Okay, now let's see the program. Hash include stdio.h, conio.h, stdlib.h, lib.h. Why you use stdlib.h here? stdlib.h means standard library function, standard file. Why you use standard library? Because we have I have already told in previous class, malloc, calloc, realloc and free function is stored in stdlib.h. Suppose scanf printf function is stored in stdio.h. clr scr get ch function stored in conio.h. When you use string operation have to include in string.h, and when we use malloc, calloc and realloc function in dynamic memory allocation, that time we use stdlib.h, right? Now main functions are there. In star a 10, this is my first matrix, and star b of 10, second matrix, this is my third matrix. M n l I j k, these are the variables. Star a 10 means this is the base address, and it can take 10 elements maximum. For I equals to 0, I less than I equals to 0, I less than 10, I plus plus, a of I equal to int star calloc. This is the formula for calloc function, I have already discussed in your previous video. Int star means here we typecast in integer type data, because my all data are in integer type in this program. That's why we typecast in integer. int star calloc, एंड कैलॉग का जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल कैपेसिटी कॉमा साइज ऑफ इंट. टोटल कैपेसिटी कॉमा साइज ऑफ इंट मीन साइज ऑफ ईच वेरिएबल. तो यहाँ पे क्या होगा? 10 इज माई टोटल कैपेसिटी, तो 10 कॉमा साइज ऑफ इंट. सेम एज इट इज बी ऑफ आई इंट स्टार कैलॉग 10 कॉमा साइज ऑफ इंट, सी ऑफ आई इंट स्टार कैलॉग 10 कॉमा साइज ऑफ इंट. नाउ प्रिंट एफ फॉर मैट्रिक्स ए, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. How many number of rows and columns you want to store? %d m n. For first matrix, number of rows and columns are m and n. Now enter matrix values. Now we enter matrix values. For I equals to 0, I less than m, I plus plus, j equals to 0, j less than n, j plus plus. Scanf %d.
how we scan for address, how we scan for base address, and what is the formula I have told? A plus I plus j, star of A plus I plus j. This will store the base address, and after that it will run, it will continue for loop. ऐसे क्या होगा, सबका जो एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा. प्रिंट एफ एंटर रो एंड कॉलम फॉर सेकेंड मैट्रिक्स, स्कैन ए परसेंट डी ampersand n ampersand l. For second matrix, the rows and columns are n and l variable. Okay, same way scan a. My second matrix name is b plus I plus j. I means row, j means column. This is the formula. Base address will be stored here. After that, what is the formula? All of you know this. We set the third matrix value equal to 0. Third value here we want to store the third matrix value equal to 0. वैल्यू लेने के लिए क्या देना होगा, इसके साथ और एक स्टार देना होगा फॉर वैल्यू, फॉर एक्सेसिंग द वैल्यू. तो स्टार सी ऑफ सी प्लस आई प्लस जे होल स्टार. have to initialize one extra variable. When we use multiplication operation in array, I have already discussed about this, why we take k variable. Why we take k variable? Because we want to find out each and every cell. We want to find out each and every cell of the matrix. Suppose this is first cell and this is the first cell. 3 and 6, 3 and 6 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर 2 and 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर 1 and 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा. इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए. Which variable we used here? K variable we used here. After that, for k equals to 0, k less than n, k plus plus. यहाँ पे n भी ले सकते हो, l भी ले सकते हो, as you wish, कोई प्रॉब्लम नहीं है. After that, what is the formula? Star star, all are the values. Star of star c of I plus j equal to, इसके साथ प्लस, ये तो पहले जीरो हम लोग इनिशियलाइज कर दिए. जीरो विल बी स्टोर्ड इन दिस लोकेशन, दिस वैल्यू. ओके, इसके साथ क्या प्लस होगा? फास्ट मैट्रिक्स वैल्यू मल्टीप्लाई. इसके साथ क्या होगा? फास्ट मैट्रिक्स वैल्यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स वैल्यू. व्हाट इज द फर्स्ट मैट्रिक्स वैल्यू? स्टार ए प्लस आई प्लस के मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द साइन फॉर मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट, स्टार ऑफ स्टार बी प्लस के प्लस जे. So resultant matrix number matrix is I equals to 0, I less than m, I plus plus. M is my first matrix and j means my second matrix column. टोटल जो मैट्रिक्स होगा उसके लिए क्या चाहिए? मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स कॉलम चाहिए अल्टीमेट रिजल्ट के लिए. दैट्स वाई यू यूज एम एंड एल हियर. प्रिंट ए परसेंट डी एंड वैल्यू विल स्टोर इन दिस, value will store in this third matrix, star of star c plus I plus j, printf slash n get ch. So this is the program. So this is the program for matrix multiplication using pointer. This is very important for your exam. Now next topic is pointers with string. Pointers with string. What do you mean by string? String means मल्टीपल कैरेक्टर विच कंटेंट्स द मल्टीपल कैरेक्टर. देखो क्या लिखा है, अ स्ट्रिंग कंटेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच ऑल स्टोर्ड इन मेमोरी कंटिन्यूअसली लाइक एरेस विच कैन बी एक्सेस्ड बाय अ पॉइंटर ऑफ द टाइप कैर. कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ स्ट्रिंग एंड अ पॉइंटर. कैसे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे? कैर, कैर इज माई डेटा टाइप. स्ट्रिंग के लिए ऑलवेज डेटा टाइप क्या होगा? कैर होगा. एस टी इज माई स्ट्रिंग नेम. 10 मीन्स इट कैन टेक्स मैक्सिमम 10 कैरेक्टर. इक्वल टू गुड लक. यहाँ पे गुड एक वर्ड है, इसके बीच में एक स्पेस है, उसके बाद लक एक वर्ड है. नाउ वी हैव टू इनिशियलाइज वन पॉइंटर वेरिएबल. stpr is my pointer variable. And what is the data type of pointer variable? Char data type. Char star stpr. Now st is my string name and GOOD एक सेल में ये स्टोर होगा. And string variable like as array variable always start with 0, 0, 1, 2, 3, 4 and last string store the null /0. Last string will be stored the null value
and this is the base address. 4041 is my base address. After that, this address, and this is the character data type. That's why it its capacity for each and every cell is 1 byte. That's why first cell base address is 4041, next cell is 40. This is the character data type, and we know that character data type साइज कितना है कैरेक्टर डेटा टाइप का. कैरेक्टर डेटा टाइप टेक्स 1 byte. Now, the base address of the string is assigned to the pointer as follows. stpr is my pointer variable equal to st, means st is my string name. String will be stored in pointer variable. First base address value will be stored in pointer variable stpr. After that, we move the stpr. Star stpr refers to the character g. stpr plus plus. Okay. After that, we move the pointer variable. Now let's see one simple program. Write a C program to count the number of vowels in a string using pointer. Write a C program to count the number of vowels in a string using pointer. Okay. Hash include stdio.h, hash include conio.h, hash include string.h, hash include ctype.h. Extra include this file ctype.h. I will tell you ctype. Why we include ctype.h. Main char st 80. Char is my data type, is my string name. 80 means it can take maximum 80 character. After that, this is my pointer variable star sptr. Okay. Int count equal to 0. Printf enter string gets st. sptr equal to st. While stpr equal to st means st is my string value. First base address will be stored in sptr. Okay. The condition is while star sptr not equal to null. कितना देर तक ये कंडीशन चलेगा? जब तक stpr star stpr not equal to null होगा. Switch to upper. Why you use to upper? I have already discussed in string class. To upper is used for converting the lowercase value into uppercase. To upper star stpr sptr. After that, case A, we know the vowels A, E, I, O, U. Case capital A, capital E, capital I, O, U. When A, E, I, O, U, when suppose we find out E, then count will be incremented by 1, means count plus plus. After that, break, and after that sptr plus plus, means we move the pointer variable by 1. After that, it will go for switch case. To upper, again it check A, E, I, O, U. Suppose second, then again count plus plus, again break operation, again sptr will be moved 1. In this way it will be continued. Last, printf number of vowels equal to %d comma count get ch, this one. Okay. Now we go to the next chapter. We want to go the next chapter. The next chapter is structure in C. What do you mean by structure? A structure is a user-defined compound data type which consists of data members related to a person or an item. कोई भी person का data हो सकता है, कोई भी item का data हो सकता है. How structure has the following form. कैसे हम लोग structure का क्या form है? जैसे if else का एक फॉर्म होता है अलग सा, फंक्शन का लिखने का एक अलग फॉर्म होता है, पॉइंटर का लिखने का अलग फॉर्म होता है, ऐसे स्ट्रक्चर का भी लिखने का अलग फॉर्म होगा. क्या होगा? देखो, स्ट्रक्ट, दिस इज द डेटा टाइप, स्ट्रक्ट डेटा टाइप, दिस इज माय स्ट्रक्चर नेम, टैग नेम, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, ब्रैकेट में हम लिखे क्या? स्ट्रक्चर नेम, टैग नेम इज माय स्ट्रक्चर नेम. सेकेंड इज ओपन. Type data member 1. Type means data type. Data member 1, type data member 2. Here some statement, and after that second curly braces closed here. After that semicolon given.
हियर डेटा मेंबर मीन्स एक्चुअली वेरिएबल। इतना दिन तक हम लोग जितना प्रोग्राम किए थे उसमें वेरिएबल यूज़ किए थे। स्ट्रक्चर को उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल नहीं बोलेंगे, स्ट्रक्चर में वो हो जाएगा डेटा मेंबर, उसको हम लोग डेटा मेंबर बोलेंगे। ठीक है, देखो दिस इज द सिंपल एग्जांपल, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट इज माय स्ट्रक्चर नेम, आफ्टर दैट इंट रोल नंबर ऑलवेज विल बी इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर डेटा टाइप, char is name always will be char and it can take maximum 30 character, int total, after that curly braces close and semicolon here. This is the form of a structure, how we write the structure program. After second braces close, here you need to give semicolon. Structure variables and arrays, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एंड एरेज, स्ट्रक्चर में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, अदर्स वेरिएबल, वो देखो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्ट्रक्ट इज माय डेटा टाइप, ऑलवेज स्ट्रक्चर होगा, एंड दिस इज माय स्ट्रक्चर नेम, इंट रोल नंबर कैड एस नेम given here, int total. Here we want to initialize some extra variable. How we initialize some extra variable in structure? Struct स्टूडेंट, फर्स्ट स्ट्रक्ट लिखना होगा, आफ्टर दैट स्ट्रक्चर नेम लिखना है, आफ्टर दैट वेरिएबल लिखना है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सेमीकोलन। और स्ट्रक्चर में हम एरे डिफाइन करना चाहते हैं, तब कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्ट दिस इज माय स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट, std इज माय एरे नेम एंड इट कैन टेक्स मैक्सिमम 50 एलिमेंट्स। ओके, ऐसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। अदरवाइज और भी अलग तरीका है जिसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्ट इज माय डेटा टाइप स्टूडेंट, इंट रोल नंबर कैड एस नेम इंट टोटल। ये क्लोजिंग जो ब्रेसेस, क्लोजिंग ब्रेस के बाद सेमीकोलन नहीं देना है, उसके बाद हम लोग एक साथ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा दिस इज माय एरे std विद इन ब्रैकेट 50, आफ्टर दैट वी गिव सेमीकोलन। ओके, अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया मीन्स ये सेपरेट लाइन में चले जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं, इन सी ईच एंड एवरी लाइन इज सेपरेटेड बाय ए सेमीकोलन, तो सेमीकोलन अगर हम लोग यहाँ पे देंगे तो इसका सेपरेट लाइन बन जाएगा। उसके लिए फिर से ये डेफिनेशन देना पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक्स वाई जेड, स्ट्रक्ट स्टूडेंट std 50, एक साथ विदाउट सेमीकोलन देके एकदम लास्ट में सेमीकोलन देके लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ dot operator or period operator is used to access a data member. डॉट ऑपरेटर एंड पीरियड ऑपरेटर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सेस द डेटा मेंबर इन अ स्ट्रक्चर और एन एरे एलिमेंट। इट हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म, इसका क्या फॉर्म है, एग्जाम्पल एक्स डॉट रोल नंबर, एक्स डॉट एस नेम, एक्स डॉट टोटल, these all are the data member, roll number, is name, total, and x is the structure name. Structure name, after that we give dot operator, after that we need to give the data member, std I dot roll number, std I dot s name, std I dot total, ये हो सकता है। देखो इसमें डिस्कस किए हैं, स्ट्रक्चर नेम इक्वल टू एस, स्टोरेज इन रैम 20, suppose x dot roll number, we want to access roll number, तो x is my structure name dot roll number 2031, x dot s name, we want to find out the student name, यहाँ पे किसी का नाम होगा, x dot total 95, these all are the data member. Now next topic is assigning value of a structure to another structure. How we assigning value of a structure to another structure, कैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर से अदर स्ट्रक्चर में वैल्यू असाइन करेंगे। स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैड एस नेम 20 इंट टोटल curly braces close semicolon means this is the structure definition. Struct student s equal to विद इन ब्रैकेट अंकित, ये डबल कोट के अंदर है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, मल्टीपल कैरेक्टर है, कैरेक्टर होता है तो विद इन डबल कोट देना पड़ेगा, कॉमा 99 कॉमा रैंक 1। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखे, रैंक 1 इक्वल टू एस, मीन्स एस के अंदर जितना डेटा मेंबर है वो किसके अंदर चला गया, रैंक 1 में चला गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा। एस में मेरा क्या था, अंकित 99, उसके बाद कॉमा देके हम लोग लिखे थे रैंक 1, तो रैंक 1 मेरा
उसके बाद वैल्यूज़ है वो सब हम असाइन किए रैंक 1 में। तो रैंक 1 इज स्टोरिंग नाउ अंकित 99. In this way, we can assigning a value of a structure to another structure. Okay. Now, let's see a simple program using structure. Define a structure with the following three members: roll number, name, total marks. Using this information, a structure variable is declared to store the details of a student. Okay. Struct student, int r name, roll number, char s name, int total, structure closed here. After that, we here we use one extra variable x. तो ऐसे हम लोग डिक्लेयर किए struct student is my structure name x. After that, enter roll number, name and total marks. Roll number obviously integer type होगा %d, name %s and total %d. कैसे एक्सेस करेंगे? यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चर नेम। स्ट्रक्चर नेम के लिए क्या यूज़ किए? एक्स वेरिएबल यूज़ किए। तो $x डॉट आर एन ओ, $x डॉट एस नेम, $x डॉट टोटल। एंड हाउ वी वांट टू प्रिंट द रिजल्ट? printf did %d, %s, %d, x dot rno, x dot sname and x dot total gets age. Okay. Now let's see the next topic, structure within structure. स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कैसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे? स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इंट रोल नंबर, कैर एस नेम, दिस ऑल डेटा मेंबर, रोल नंबर, एस नेम, दिस स्ट्रक्चर स्टूडेंट, दिस इज अनदर स्ट्रक्चर विद इन द स्टूडेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट एड्रेस, इसके अंदर ये डेटा टाइप है। इसके बाद देखो रेस एड्रेस, इंट टोटल, ये इधर ख़त्म हो गया है, इंट रेस एड्रेस, इंट टोटल। ठीक है। आफ्टर दैट ए कॉमा वाई कॉमा जेड एस टी डी 50, दिस इतना दूर तक कितना होगा? रेस एड्रेस, इतना दूर तक मेरा अनदर स्ट्रक्चर है। इन टोटल जो है ये स्ट्रक्चर के अंदर है, मेरा स्ट्रक्चर के अंदर है। आफ्टर दैट इन दिस वे वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल ऑल्सो एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम सेमिकोलन नहीं दिए, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एस टी डी 50। आफ्टर दैट वी गिव सेमिकोलन हियर। अनदर वे we can represent the structure within structure. In this way we also represent structure within structure. ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। आफ्टर दैट वी डिक्लेयर द वेरिएबल। स्टूडेंट के अंदर क्या क्या वेरिएबल है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एस टी डी 50, ये सब वेरिएबल है। एक्स डॉट आर ई एस है तो street name, these all are the variables also. Now union. What do you mean by union? Actually structure and union में बहुत similarities है। स्ट्रक्चर में हम क्या बताए थे? स्ट्रक्चर में टोटल साइज हम लोग को कैसे पता चलेगा? टोटल कितना साइज है स्ट्रक्चर, वो हम प्रीवियस डे पॉइंटर का प्रोग्राम जब किए थे तब बोले थे। इधर फिर भी एक बार क्लियर कर रहे। देखो, हाउ वी फाइंड आउट द टोटल साइज ऑफ दिस स्टूडेंट स्ट्रक्चर? इंट रोल नंबर, इंट रोल नंबर मीन्स इंट का साइज सपोज 2 बाइट्स है। ओके, इंट का साइज सपोज 2 बाइट्स है। आफ्टर दैट कैर एस नेम, कैर स्टूडेंट नेम, मैक्सिमम साइज 30 मीन्स मैक्सिमम इट कैन टेक्स 30 कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए कितना बाइट है? 1 बाइट है। तो कैरेक्टर के लिए 1 बाइट है, तो 30 कैरेक्टर के लिए कितना बाइट रहेगा? 30 बाइट रहेगा। इंट टोटल, तो इंट इंटीजर के लिए 2 बाइट। टोटल स्ट्रक्चर साइज मेरा कितना है? 34। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द टोटल स्ट्रक्चर साइज। इंट रोल नंबर, कैर एस नेम, इंट टोटल, टोटल स्ट्रक्चर साइज स्टूडेंट स्ट्रक्चर का टोटल साइज है मेरा 34। इज इट क्लियर? होप it is clear to all of you. Now we start the next topic, union. सिमिलर एंड यूनियन में एक डिफरेंस है। एक्चुअली स्ट्रक्चर एंड यूनियन का डिफरेंस तुम लोग का एग्जाम में बहुत आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन? तब तुम लोग को 4-5 पॉइंट बना के लिखना पड़ेगा, 4 and 5 पॉइंट्स।
यूनियन क्या है? सिमिलर टू अ स्ट्रक्चर, यूनियन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ डेटा मेंबर्स बट ओनली वन डेटा मेंबर इज एक्टिव एट अ टाइम. इट हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म. स्ट्रक्चर में क्या होता है? जितना डेटा मेंबर है सब एक ही टाइम में एक्टिव रहता है, बट यूनियन में क्या होगा? ओनली वन डेटा मेंबर इज एक्टिव एट ए टाइम. तो यूनियन में कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? देखो, यूनियन एंड दिस इज माई यूनियन नेम, टैग नेम इज माई यूनियन नेम. टाइप डेटा मेंबर 1 सेमीकोलन, टाइप डेटा मेंबर 2 सेमीकोलन, यहाँ पे सेकेंड ब्रेसेस सेमीकोलन. टाइप मीन्स डेटा टाइप. एग्जाम्पल देखो, यूनियन स्टूडेंट इंट रोल नंबर कैर एस नेम सेमीकोलन हियर. यूनियन स्टूडेंट x, y, z std 50. सेम एज इट इज स्ट्रक्चर. यहाँ पे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट होता था, यहाँ पे यूनियन होता है. ठीक है. सिमिलर टू स्ट्रक्चर एक्सेप्ट दैट ओनली वन डेटा मेंबर कैन बी असाइंड वैल्यू एट अ टाइम. डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग, यूनियन को भी डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं. साइज ऑफ अ यूनियन, इसमें डिफरेंस है. साइज ऑफ द यूनियन क्या होगा? साइज ऑफ द स्ट्रक्चर क्या होगा? वो हम अभी अभी डिस्कस किए. साइज ऑफ द यूनियन क्या होगा ये देख लो. यूनियन स्टूडेंट इंट रोल नंबर है, कैर एस नेम है 20. साइज ऑफ द यूनियन कितना होगा? इट कैन टेक्स द मैक्सिमम डेटा साइज, ओनली द मैक्सिमम डेटा साइज. यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर 2 और 4 बाइट्स हम लोग जानते हैं. सपोज यहाँ पे इंटीजर 2 बाइट्स है. कैरेक्टर कितना? 1 बाइट है. इट कैन टेक्स मैक्सिमम कितना कैरेक्टर है? 20. और यहाँ पे तो 1 वेरिएबल है और यहाँ पे 20 कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली कैरेक्टर 20 कैरेक्टर के लिए 20 बाइट्स लगेगा. तो मैक्सिमम डेटा टाइप, मैक्सिमम साइज ऑफ द डेटा टाइप कितना है मेरे के लिए? तो साइज इक्वल टू 20 बाइट्स. तो यूनियन का साइज क्या होगा? 20 बाइट्स होगा. जैसे ये अगर स्ट्रक्चर होता था तब यहाँ पे टोटल स्ट्रक्चर साइज कितना होता था? 22. साइज 2 है और यहाँ पे यूनियन साइज कितना होगा? 20 होगा, बिकॉज इट कैन टेक्स ओनली द मैक्सिमम साइज ऑफ द डेटा टाइप. I hope it will be clear. I hope it is clear to all of you. Now, some keywords are there. Enum data type. Some data type. Enum is also a data type and enum is also a keyword. In C, all of you know 32 keywords are there. Enum, one of the keyword. Enum represents the enumeration data type which is used to instruct the compiler to associate with the specific list of values for a variable. स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ फॉर अ वेरिएबल. ये इनम, यहाँ पे ये इनम एक्चुअली हम लोग उतना यूज़ नहीं करेंगे प्रोग्राम में. बेसिक सी प्रोग्रामिंग में एक्चुअली तुम लोग का सिलेबस में उतना नहीं है, लेकिन हाँ इनम जानना पड़ेगा, टाइप डेफ डिक्लेरेशन जानना पड़ेगा, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं. इनम कीवर्ड फॉर एनुमरेटेड डिक्लेरेशन. डेज एनुमरेटेड डेटा टाइप एंड उसके अंदर वैल्यू है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. दीज आर द वैल्यूज इन द एनुमरेटेड लिस्ट. बस इतना तक जानने से ही हो जाएगा. नाउ टाइप डेफ डिक्लेरेशन. टाइप डेफ डिक्लेरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप डेफ? टाइप डेफ मीन्स डेफिनेशन टाइप. ओके, टाइप डेफ मीन्स डेफिनेशन टाइप. देखो, टाइप डेफ refers to definition of data types which can be used by the users to declare their own data definition names. Means using type def we can define the data type in own way. हम लोग अपने तरीका से डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे सी में पहले से तुम लोग को क्या सिखाई? इंटीजर क्या होगा? इंट होगा. कभी इंटीजर लिखते हैं इंट, INT इंट. कैरेक्टर कभी नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं? CHAR. ओके, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं यूजिंग टाइप डेफ बाय द यूज़र. कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो, उसके लिए पहले तुम लोग को टाइप डेफ देना होगा. टाइप डेफ एक कीवर्ड है. टाइप डेफ यहाँ पे लिखना होगा. आफ्टर दैट इंट, आफ्टर दैट इंटीजर. मीन्स इंट को हम लोग डेफिनेशन टाइप चेंज करके क्या करेंगे? इंटीजर करेंगे. तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? टाइप डेफ इंट नेम इन सी जो स्टैंडर्ड है, और इंटीजर न्यू नेम डेफिनेशन बाय यूज़र. जो यूज़र है, मान लो हम एक यूज़र है, हम देना चाहते हैं इंट के लिए इंटीजर, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? कंप्यूटर तो समझ में कंप्यूटर को नहीं आएगा इंटीजर लिखने से, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या सेव करेगा, क्या पहचानता है? इंट. ऑटोमेटिकली ये सब ऑलरेडी है.
तो इसके लिए क्या करना होगा, टाइप डेफ कीवर्ड यूज़ करना होगा, उसके बाद इंट, उसके बाद इंटीजर। नाउ टाइप डेट फ्लोट रियल, फ्लोट को हम लोग रियल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फ्लोट रियल, फ्लोट का जो वैल्यू देखना चाहते हैं इसलिए ये दिया। ये डेफिनेशन है। एक्चुअली क्या है, टाइप डेफ इज यूजफुल टू असाइन अ न्यू नेम to a data type or structure. It does not have any other advantage and is not commonly used in C programming. ये हमेशा C programming में commonly used नहीं होता है, बहुत रेयर्स में यूज़ होता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट का काम रहेगा तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जानना जरूरी है, इसलिए हम डिस्कस कर दिए। व्हाट इज टाइप डेफ डिक्लेरेशन? टाइप डेफ डिक्लेरेशन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्लियर हुआ है? टाइप डेफ डिक्लेरेशन हम लोग यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि ये यूज़र अपने मन से कुछ डेटा टाइप का नेम चेंज करके दे सकता है। सपोज डेटा टाइप यहाँ पे क्या है, टाइप डेफ इंट इंटीजर, इंट को हम लोग इंटीजर तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ टाइप डेफ डिक्लेरेशन। ओके, इतना तक ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शॉर्टिंग करेंगे, सिलेक्शन शॉर्ट, बबल शॉर्ट एंड इंसर्शन शॉर्ट, दैट इज include in your syllabus also. Okay, all of you, thank you.